explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 21 of grammar, and the name of the chapter is letter writing. So इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे about the letter writing, right? So first of all, let us begin with the chapter and see कि ये letter writing होता क्या है, right? So they say that letters are of two types. तो पहले ये लोग हमें बता रहे हैं कि letter actually दो तरीकों का होता है. That is the formal letters and the informal letters, right? तो ये जो letters हैं ये दो तरीके के होते हैं. That is the formal letter and the informal letters. So first of all, we have the format of a letter. तो अब यहाँ पर हमारे पास एक letter का format है कि वो actually कैसे लिखा जाता है. Let us read this. So it says, a letter consists of 4 different parts. तो एक letter में actually 4 अलग अलग parts divided होते हैं. That is heading, salutation, body and ending. Right? तो ये जो letter है इसमें 4 parts होते हैं. Correct? Example. So first of all, we all are going to write the sender's address. यानी कि जो उस letter को भेज रहा है, यानी कि हम, they are the sender of this letter. So we are going to write our address in the first 4 lines as it is written. Flat number 20, Riya Kunj, Vinod Vihar, Delhi. Correct? Next, we are going to mention the date. The date should be appropriate, right, and it should be written in full form. We are not going to mention any kind of slash or dot or anything between the date. It should be written very clearly in this form only. Correct? Right, so here we have the date. In the next line, we are going to write the receiver's address. Right? Now, what is receiver's address? यानी कि जो उस लेटर को एक्चुअली रिसीव करने वाला है उसके लिए हम वो लेटर में वहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे. Just like the principal, DPS school, Rohini, Delhi. Right? Now, moving ahead to the next one. It is, respected sir. Here, this is known as the salutation. That means आप जिसको letter लिख रहे हो, आप उसको थोड़ी respect दे रहे हो. You're giving him the greetings, right? Next, we have, I beg to say that I am unable to attend the school as I am suffering from severe headache. That means this is the content of the letter, right? That means it is actually the body of the letter. जिसमें आप पूरा का पूरा reason समझाओगे कि आप वो letter क्यों लिख रहे हो. What is the message that you want to convey on behalf of that letter? Correct? Next. Please grant me leave for today. So now what they say, that they need to please grant me leave for today. यानी कि अब आप यहाँ पे complimentary closing दे रहे हो अपने लेटर को. आपने पूरा अपना रीज़न समझा दिया. अब आप एंड में उस पर्सन से क्या चाहते हो, that is what you are going to write over here, right? Next, you are going to mention the name and the signature of yours. That means the sender. Correct? So it is, yours obediently, Ravi Khanna,
class 4C. Correct? So this is the whole format of the letter, that how you can frame very easily a simple letter format, right? So now they say that the heading consists of, अब ये जो heading है ये क्या क्या चीज़ें अपने consist करती हैं, राइटिंग में क्या क्या है. So they say the sender's address at the top left hand corner of the first page. यानी कि आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सेंडर का एड्रेस लिखोगे. करेक्ट? आफ्टर दैट द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर जस्ट बिलो द एड्रेस. उसके बाद जैसे ही द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर जस्ट बिलो द एड्रेस, राइट? तो अब लेटर में जब हम डेट मेंशन करेंगे तो वो सेंडर्स एड्रेस के बिल्कुल नीचे आएगा. करेक्ट? द रिसीवर्स एड्रेस बिलो द डेट. तो अब डेट के नीचे आप रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करोगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. Now we have alternate also for this. Now अगर हम वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं ये भी देखते हैं. So the receiver's address at the top left bottom corner of the first page. यानी कि आप सबसे पहले ही रिसीवर्स एड्रेस को लिखना शुरू कर दोगे जो कि पेज के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर होगा. करेक्ट? एंड द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर जस्ट बिलो द एड्रेस. यानी कि एड्रेस के जस्ट नीचे आप डेट मेंशन कर सकते हो. करेक्ट? नाउ इट सेज द सैल्यूटेशन डिपेंड्स ऑन. अब जो सैल्यूटेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, राइट? वेदर इट इज़ अ फॉर्मल और एन इनफॉर्मल लेटर, राइट? अब जो सैल्यूटेशन है वो डिसाइड होती है ये देखकर कि क्या वो एक फॉर्मल लेटर है या फिर एक इनफॉर्मल लेटर है, राइट? द पर्सन टू होम द लेटर इज बीइंग एड्रेस्ड, उस पर्सन पर भी डिपेंड करता है जिसको हम वो एड्रेस एक्चुअल में लिख रहे हैं, राइट? द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ. अब जो लेटर की बॉडी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. सो इट सेज द मैसेज यू वांट टू कन्वे थ्रू द लेटर. यानी कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो लेटर के थ्रू वो आप उस बॉडी में लिख सकते हो, यानी कंटेंट में लिख सकते हो. या फिर इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, या फिर वो पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया हो, राइट? नेक्स्ट, द एंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ. अब जो लेटर्स की एंडिंग होती है उनमें क्या क्या मौजूद होता है. Let's see. So it is the complementary clause written on the left side of the page below the last words of the body of the letter. क्या एंडिंग में एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग डालोगे जो कि पेज के लेफ्ट साइड पर ही होगी. करेक्ट? एंड द नेम एंड द सिग्नेचर ऑफ द राइटर just below the complimentary closing, right? और उस complimentary closing के नीचे आपका नाम, आपका सिग्नेचर, आपका डेजिग्नेशन प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए. करेक्ट? सो नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मल लेटर्स. तो अब ये फॉर्मल लेटर्स क्या है, राइट? सो लेट्स सी. Letters written for an official purpose are called formal letters. तो ऐसे letters जो कि
किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है फॉर्मल लेटर्स. करेक्ट. नाउ दे से अ फॉर्मल लेटर हैज फॉलोइंग पार्ट्स. तो अब एक फॉर्मल लेटर में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. कुछ पार्ट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं. लेटर्स रीड की वो कौन कौन से पार्ट्स हैं. So, the very first part that we have in the formal letter is address. तो अब बात की जा रही है address की. So let's see. It is written on the left hand side of the letter. कि वो left hand side corner पे लिखा जाता है letter के. Next. It consists of sender's address. That is optional. कि उसमें आप सेंडर्स एड्रेस मेंशन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो. दैट इज अप टू योर चॉइस, राइट. बट द डेट एंड द रिसीवर्स एड्रेस इज मैंडेटरी, राइट. नेक्स्ट, नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द लाइन्स ऑफ द एड्रेस. कि एड्रेस की लाइंस के बाद कोई भी कॉमा नहीं लगाया जाता है. इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट. नेक्स्ट, द डेट इज रिटन जस्ट बिलो द रिसीवर्स एड्रेस इफ देयर नो सेंडर्स एड्रेस, राइट. तो अब रिसीवर्स एड्रेस के नीचे हम डेट लिखते हैं, राइट, जहां पर कोई भी सेंडर्स एड्रेस नहीं होता है. करेक्ट. नेक्स्ट, वी हैव ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस. तो अब बात की जाए ग्रीटिंग्स की और सैल्यूटेशंस की, राइट. सो इट सेज इट इज रिटन बिलो द डेट or after receiver's address when sender's address is written before date. तो ये एक्चुअली डेट के नीचे मेंशन किया जाता है रिसीवर्स एड्रेस के बाद, राइट. जब सेंडर्स एड्रेस जो है वो डेट से पहले लिखा जाएगा तब. क्लियर. नेक्स्ट, इट बिगिंस with a capital letter. Example, dear, respected, right. तो ये जो सैल्यूटेशंस होती हैं ये एक्चुअली कैपिटल लेटर से ही शुरू की जाती हैं, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया गया है डियर या फिर रिस्पेक्टेड का. नेक्स्ट, नाउ वी हैव बॉडी. तो अब बात की जाए बॉडी की. सो लेट्स सी. It contains the message that you wish to convey. तो ये एक्चुअली ऐसा मैसेज कंटेन करता है जिसमें आप जिसे आप कन्वे करना चाहते हो. क्लियर. बॉडी, दैट मीन्स आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो. द रीजन बिहाइंड राइटिंग द लेटर इज नोन एज द कंटेंट. इट मस्ट बी डिवाइडेड into paragraphs if long. कि अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसे हमें पैराग्राफ में डिवाइड करना है. The body begins with a capital letter. Obviously जो लेटर का बॉडी है, जो कंटेंट है, वो कैपिटल लेटर से ही शुरू किए जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट, वी हैव द क्लोजिंग. तो अब बात की जाए क्लोजिंग के बारे में, right. So it is letter should end in a polite way. कि जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से, पोलाइट तरीके से हमें एंड करना चाहिए. Just like yours obediently, yours sincerely, right. इस तरीके से हम अपने लेटर को एक बहुत पोलाइट सी एंडिंग देंगे. नेक्स्ट, we have signature. So बात की जाए सिग्नेचर की, राइट.
So it says it contains your sign and is written at the end of the letter. तो ये एक्चुअली हमारे साइन कंसिडर करता है और लेटर के एंड में लिखा जाता है, राइट. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हमें एंड में अपना डेजिग्नेशन देना होता है, राइट. नाउ मूविंग अहेड, जैसे write an application to the principal of your school requesting him to grant you sick leave. तो अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, राइट, और जिसमें आप एक सिक लीव की डिमांड उनसे कर रहे हो, राइट. सो इट मे बी स्टार्टेड एज द प्रिंसिपल, MD International School, New Delhi. This is the receiver's address, right? Next, we have the date over here. Obviously, मैंने बताया था कि जब भी हम सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखेंगे तो हम सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस डालेंगे, देन उसके बाद हम डेट डालेंगे, right? And below the date will be the salutations. Clear? So as same it is mentioned as I told you earlier. Now we begin with the content of the letter, that means the body of the letter. So let's see इसमें क्या लिखा है. So it is, I fell from my bicycle yesterday while returning home from school and injured my right leg, right? I cannot attend school because I am unable to walk. Kindly grant me leave from September 27 to September 30, right? So you saw how simply we have mentioned the reason for the leave and we have also requested for the leave, right? So it is ending, which is yours obediently. You added a good closing to your letter. Kripa Singh, class 4th B. And in the end you mentioned your signatures also. Clear? So this was a simple formal letter that we can frame very easily, right? Now, moving ahead, we have the topic which is informal letters. तो अब ये informal letters क्या होते हैं? Let us see and find out. So they say, informal letters are written to friends, relatives and acquaintances. यानी कि हम इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उन्हें लिखते हैं या तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर acquaintances. Acquaintances मीन्स जो फ्रेंड्स हमसे बहुत दूर रहते हैं, जिनसे हम 1 या 2 बार ही मिले होते हैं, राइट. The language is personal and the style is chiefly conversational. कि जो लैंग्वेज है वो पर्सनल है, जो लैंग्वेज होती है वो पर्सनल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, राइट. क्योंकि जब भी आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से बात करते हो तो आप इतने ऑफिशियली मोड पे नहीं करते हो. यू आर वेरी फ्री, यू कैन यूज़ एनी वर्ड दैट यू वांट, राइट. एंड द स्टाइल इज चीफली कॉन्वर्सेशनल. और जो स्टाइल होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप नॉर्मली उनसे सामने बैठकर बातचीत कर रहे हो, राइट. नाउ इट इज अ फ्रेंडली और पर्सनल इंफॉर्मेशन, a friendly, personal or informal letter has following parts. अब जो informal letter होता है उसके ये सभी parts होते हैं जो यहाँ पर mentioned है. Let us read them. So the first one that we have is the address. So for informal letter में भी सबसे पहले address आता है. Let's see कि हमें किसका address mention करना होता है. It is written
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर. सो जो लेटर है, जो एड्रेस है, उसको हमें लेटर के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर लिखना होता है. नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द लाइन्स ऑफ द एड्रेस. कि एड्रेस की लाइन्स के बाद कोई कॉमा लगाना मैंडेटरी नहीं है. राइट. नेक्स्ट, द डेट इज रिटन along with the address. जो डेट है वो भी एड्रेस के साथ ही बिल्कुल उसके नीचे लिखी जाती है. राइट. नेक्स्ट, वी हैव ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस. तो अब हमें ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस लिखनी है. राइट. सो it is written below the date after leaving a line. तो ये डेट के नीचे मेंशन की जाती है जब आप एक लाइन छोड़ देते हो. It begins with a capital letter. Example, dear. ये साथ ही साथ एक कैपिटल लेटर से शुरू की जाती है लिखनी. Example, dear. Right? Next, we have body of the letter. Right? So it contains the reason for writing the letter. तो ये एक्चुअली एक रीज़न कंसिडर करता है, कंटेन करता है जब भी हमें एक लेटर लिखना हो. राइट. यानी कि उस लेटर को लिखने का क्या रीज़न है वो हम यहाँ बॉडी में मेंशन करते हैं. इफ इट इज़ लॉन्ग, डिवाइड द बॉडी इनटू पैराग्राफ्स. कि अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो हमें इसकी बॉडी को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. राइट. नेक्स्ट, वन पैराग्राफ हैज़ वन मेन पॉइंट एंड इट्स डिस्कशन. कि एक पैराग्राफ के पास एक मेन पॉइंट होगा और साथ ही साथ उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. Clear? Next, begin the body of the letter with a capital letter. कि हम लेटर की बॉडी को एक कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे. राइट. लेट्स मूव अहेड. नाउ here we have the closing or the conclusion. Right? कि हम अपने लेटर को कैसे क्लोज करेंगे. सो लेट्स सी. लेटर शुड एंड इन अ पोलाइट वे. कि लेटर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से एंड किया जाना चाहिए. टू फैमिली मेम्बर्स. राइट. फैमिली मेम्बर्स के लिए हम लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली, your loving son or daughter, yours sincerely, truly yours, or with regards. Right? But to the formal friends and acquaintances, we can write yours sincerely, your loving friend, your friend. Right? So इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन्स, अपने क्लोजिंग्स मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज सिग्नेचर. सो बात की जाए सिग्नेचर की. राइट. सो इन लेटर्स टू अ फैमिली एंड फ्रेंड्स. कि जो लेटर्स हम लिखते हो फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को, पुट योर फर्स्ट और इवन अ पेट नेम. क्या आप सबसे पहले अपना फर्स्ट या फिर अपना पेट नेम लिखेंगे. राइट. फॉर फॉर्मल फ्रेंड्स, पुट ओनली द फर्स्ट नेम और फुल नेम. फॉर्मल फ्रेंड्स के लिए आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम या फिर अपना फुल नेम भी मेंशन कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट, एड्रेस ऑन द एनवेलप. तो अब एनवेलप पे आप अपना एड्रेस मेंशन करोगे. राइट. सो दे से दिस शुड बी नीटली रिटन
एंड प्रॉपरली स्पेस्ड, कि वो बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ लिखा जाना चाहिए और उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से स्पेस दी जानी चाहिए, राइट। नाउ दे से write a letter to your friend telling her about the friends club you have started at home. तो अब जल्दी से एक लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को, जिसमें हमें उसे बताना है कि हमने एक फ्रेंड्स क्लब स्टार्ट किया है अपने घर पर और हम उसे इनवाइट कर रहे हैं उस क्लब के मेंबर बनने के लिए. So let's see. First of all, you are going to mention your address, which is 13th Kamla Vihar, New Delhi, 20th May, right? And whatever the date is, right? Next, you are going to mention the salutations, which is Dear Reena, right? So, I have started a friends club at home this month. Many interesting activities are going to be performed in the meetings, which will be held every second Saturday. The study room has been converted into a small library. You too can contribute your books. During the holidays, a story session can be planned. Each of us will bring snacks and enjoy them in the garden. We will hold a meeting this Saturday to discuss what more can be included, and everyone can share their creative ideas to make everything very interesting. Hope to meet you with your bubbly ideas, right? Your loving friend, Sonam. So this was the closing of the letter, and in the end we have placed our signatures, right? So you saw how easily we have framed an informal letter also, right? Following the formats of the letters, we can simply frame the letters very easily, right? So after that, as you can see, we all have a lot more practice questions so that you can get a clear idea that how you can frame your letters very easily, right? So these are some practice questions that you are supposed to do yourselves. I hope you easily frame the good letters. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the procedure of writing both the formal and the informal letters as well, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.